Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. This is the easiest process, that you come here and hear about Krishna. That's all. You haven't got to do anything. Simply come here. We are opening all this center just to invite you. Please come here and hear about Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is good bhash. Here it is said, Simnanti. Kunti Devi, the first business is Simnanti. One must be eager to hear. Unless everything is hearing, you go to school, college, what purpose? You pay the school fee, college fee, for hearing. You hear from the learned professor, teacher, you sit down and you get knowledge. The first thing is Simnanti. Therefore, a devotee is always engaged in hearing about Krishna. Simnanti. That is devotee's business. Tabihitam. Those who are cultivating Krishna consciousness, their first business is hearing. So Simnanti, Gayanti. And if you actually have heard about Krishna, the next business will be to chant, Gayanti. Just like our preachers are going from here to interior parts of the village. Wow, what is the purpose? For Gayanti, for preaching, for chanting, so that they may get the opportunity of hearing. Giving opportunity to the people for hearing. That is Gayanti. Ginanti, and takes seriously. Aviknasa. Aviknasa means 24 hours, without any stop. Always. Kirtaniya Sadahari, Chaitanya Mahaprabhu therefore recommend, Kirtaniya Sadahari, one should be engaged 24 hours in chanting. That is the business of Krishna conscious man. Hearing, chanting, Savanam, Kirtanam, either all the items or take to one item. Simply hearing, just like Parikshit Maharaj did. Parikshit Maharaj did not do any other thing. He sat down tight before Sukadeva Goswami and went on hearing for 7 days. And then his life is finished. So anyone or all of them, if you simply hear without doing anything, simply sit down in the temple, and whenever there is talk of Bhagavad Gita, Bhagavad, go on hearing. Even if you do not understand, please hear, that's all. If you simply read Krishna book, although it looks like story, then you become delivered from these clutches of repetition of birth and death. It is so nice. Because you will understand Krishna, what is Krishna, and here it is said, Janma karma me dibbam jujanati tattva. It is explained. The people who are reading Krishna book very seriously and tries to understand Krishna, he will understand. Krishna is very kind. As soon as you begin reading Krishna book with little faith and adherence, Krishna will be very much pleased. आप चैट बॉक्स में हमारे साथ लिख सकते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान से, उनको कितने ऐश्वर्य होते हैं? भगवान कृष्ण कितने ऐश्वर्य होते हैं? बहुत ही सिंपल आंसर है,
सबसे पहले राम नरेश दारा, 6 ऐश्वर्य, बिल्कुल सही। 6 ऐश्वर्य जिसमें होते हैं जिस व्यक्ति में, सर्वोच्च पर्सनैलिटी है, भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो कृष्ण है, 6 ऐश्वर्य प्रदान। चलिए अगला प्रश्न कि आज की जो बुक रीडिंग हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण जो है मथुरा से बिना युद्ध के आ जाते हैं, और मथुरा से युद्ध करने के पश्चात जो भगवान जब आए हैं तो उनका एक नाम पड़ा है। सबको मालूम भगवान का नाम क्या पड़ा है? सबसे पहले लिखिए क्या नाम भगवान का पड़ा है। वो लीला जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, चैप्टर का नाम भी वही है, रणछोड़। सबसे पहले नाम लिखा है वैभव, आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर, रणछोड़ है भगवान का नाम। भगवान रणछोड़ देते हैं और वो रणछोड़ का मंदिर आज पूरे भारत में है। तो रुक्मणी ने अपने इस भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह हो, उसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई, और उस युक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसको भेजा भगवान के पास? यस, एक ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण। सबसे पहले उत्तर दिया है रमाकांत प्रभु ने। और उस ब्राह्मण को जो रुक्मणी जी ने भेजा, तो ब्राह्मण की क्या योग्यता बताई है भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने अभी? ब्राह्मण की क्या योग्यता है? एक ब्राह्मण होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले उत्तर दिया है नवीन मित्तल ने, ब्राह्मण होता है विष्णु भक्त। विष्णु भक्त के साथ साथ एक और गुण है ब्राह्मण का, वो क्या था? यस, सबसे नवीन मित्तल प्रभु ने लिखा है सत्य, ट्रुथ, बट वो, और दीक्षा चतुर्वेदी जी ने लिखा है ट्रुथ। हाँ, तो ब्राह्मण का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि वो ट्रुथफुल होता है। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित कृष्णा बुक की रीडिंग हर दिन हो रहा है, और उसके ऊपर जो क्विज होता है उसमें मैं विनर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बुक मुझे विनर गिफ्ट में मिला है। कृष्णा बुक के रीडिंग के कारण कृष्णा की लीलाओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रहा है। आप सभी डिवोटी से निवेदन है कि आप भी इस कृष्णा बुक रीडिंग में आइए और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंदमय लीलाओं के लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। आज मैं अपने लाइफ का सबसे ही वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा मूवमेंट के द्वारा एक लाइव सेशन होता है, कृष्णा बुक रीडिंग सेशन। इस सेशन में मेरी लाइफ चेंज कर दी। ये रोज़ होता है 8 बजे, और इस सेशन को मैं कभी भी मतलब मिस नहीं करती हूँ, हमेशा रेगुलर रहती हूँ, क्योंकि इस सेशन की वजह से भक्ति में मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो गई कृष्णा की तरफ। रोज़ रोज़ नई नई लीलाएं कृष्णा की सुनने मिलती है, और इस सेशन में की वजह से क्विज़ भी होता है। उस क्विज़ में मैं रेगुलरली पार्टिसिपेट करने लगी, जिसकी वजह से मैं उस सेशन में विनर भी रही, और उस विनर की वजह से मुझे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ये जो बुक है वो गिफ्ट मिली, और ये इस सेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक डिवोटी ये सेशन अटेंड करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी के लाइफ में कृष्णा आए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद ने अनेकों दिव्य उपहार हमें दिए हैं, लेकिन उनमें से एक श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद श्री कृष्ण बुक परम पुरुषोत्तम लीला भगवान की, यह अद्भुत आनंदमयी लीलाओं का वर्णन इस बुक में दिया गया है। जैसे कि भगवान की बाल लीलाएं हैं, मथुरा की लीलाएं हैं, फिर द्वारका की लीलाएं हैं। इन सभी लीलाओं को इस बुक के अंदर बहुत ही आनंदमयी तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। तो
और हरे कृष्णा मूवमेंट द्वारा इस बुक का रीडिंग सेशन ऑनलाइन जूम लिंक द्वारा आयोजित हो रहा है। तो कृपया आप सभी तुरंत इस जूम लिंक से जुड़िए और भगवान की दिव्य आनंदमय लीलाओं का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। मेरा नाम दीक्षा है। हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर द्वारा आयोजित कृष्णा बुक रीडिंग से मैं पिछले 5 महीनों से जुड़ी हुई हूँ और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से मुझे आप सब भक्तों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ एज अ वॉलेंटियर। मुझे पिछले महीने एज अ वॉलेंटियर सेवा करने के लिए ये बहुत सुंदर सा कलश कृष्ण बलराम टेम्पल की ओर से भेजा गया है और ये मैं पाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी हमारे साथ डेली शाम को 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक एसोसिएशन करें कृष्णा बुक रीडिंग में और अपना दिन सफल बनाएं, जो कि आपके दिन का 1% मात्र है। आप भी आएँ और हमारे साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। हरे कृष्णा।